on, Sanjay. You are there, you are able to hear? Hello, yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. So this is now the additional class which we are having as a revision. Okay. So and the quiz is also going to be based on these drives, and in the previous class, I think when you were not there, then we did the full converter, and the operation of semi converter as well as operation of the full converter is available here on the semi-converter in discontinuous mode and semi-converter in continuous mode. Okay, so basically you have to understand the difference between the continuous and the discontinuous conduction mode, and when what happens. Okay, so what happens when. So most of the concepts remain the same for the full converter also. The concepts which have been underlined here, okay, they remain the same. Here you see, I was telling the voltage appears here just because the current has become zero. Okay, and the current will be maximum, the armature current will be maximum when the instantaneous value of voltage is equal to the back EMF. Okay, and this remains always the condition. So this point coincides, this point will always coincide with this point. Okay, can you see the cursor here? Because I think I have opened the PDF file, so that's why. So are you able to see the movement which I am making? Yes, ma'am. So this is the peak. Okay, so everywhere whenever waveform will cut the voltage, this will be the peak of the current. Sometimes we show this current as a straight line in steady state as an average value. Okay, but the instantaneous value will be in this particular way, and here the conduction has stopped now. The conduction could have gone up to this point. If the conduction could have gone up to pi plus alpha, then you would get a continuous conduction mode. Now, why the conduction did not go up to pi plus alpha, that we have already seen here. The reasons are, these are the reasons which are there. And Sanjay, I have graded your this assignment. So you have done very well. Have you seen your grades? You have got 95%. Your work is very good, except I have just put some query there. And Diksha perhaps has not understood the was asked of her. So actually, it was a very specific question about specifications, and specifications means ratings. So you have written very well, and Diksha, I think, is not there today. She had asked me for the 5 o'clock class, but I'm not free today at 5. So I said I'll take a short class at, and the attendance in this class is also going to count. So you see, these things, if you understand, then the converter operation will become very clear to you. Okay. Now, because the current here is zero, that is why the back EMF has appeared here. If the current had been flowing, because you see what happens, the machine is totally disconnected from the supply, and even the current is not flowing. If the current had been flowing, so SCR is a current control device, and particularly in this particular machine, if you look at the circuit diagram here, so in this circuit diagram there is a flywheel diode. So if the current flows, okay, in this way, then at least the energy will be dissipated and the current will keep flowing. So therefore, in continuous current operation and in the discontinuous current operation, there is a difference here. Here the voltage is zero, while here the voltage is EB. Okay, and rest of the thing, how the current increases and all, we have written everything. So if you look at the slides properly, you will understand, and you must go through the slides here. All the four quantities have been discussed, what the four quantities, and the AC voltage, AC current, DC voltage, DC current, and on what factors these values depend. Okay, so this has been discussed here, that when the current flows, what is the waveform, on what factors the harmonics will depend, etc. Okay, so naturally
because we have studied so far the continuous conduction operation and discontinuous conduction operation for a semi converter. After that, yesterday's class we discussed the full converter operation. Okay. However, the quiz will not consist of this. The quiz questions I'll just discuss with you. Quiz is not related to you, but hurriedly I will go by this. Here, there is no need of a flywheel diode, and this is a two-quadrant converter because the voltage can become negative here. Now, how does the voltage become negative? Because in these devices, when this TH2 is triggered, TH1 is reverse biased and switched off. Similarly, when the device is triggered, the other is turned off. This is how the conduction pattern will be for these devices here. And till then, if the operation is continuous, you see, then in that case, after pi also, devices TH1 and TH3 will keep conducting. In case of diode, there was no such provision. जब डायोड होता था TH1 और D2 होता था तो कंडक्शन यहाँ बंद हो जाता था. But now the conduction will be there because they are thyristors, and thyristors will remain forward biased. I mean, they are not forward biased. This is the negative cycle. But can you answer why these devices are conducting from pi to pi plus alpha, TH1 and TH3? Why are they conducting? What is the reason? Actually, they are not off here. SCRs are not off here. While, and that is why they are still conducting. So why? Simple reason is that they are not switched off at pi. But why are they not switched off? At omega t is equal to pi, TH1 as well as TH3 both become reverse biased. And there is no flywheel diode or anything, okay? So can you answer? मैम इंडक्टिव इफेक्ट के इंडक्टर्स की वजह से इंडक्टर के कारण, but exactly क्या? What does the inductor do? What does the inductor do? Means the device. Actually it takes time to fully charge. जब मैम करंट जब मैम जीरो होगा तो मैम SCR स्विच करेंगे. Very good, very good, very good. SCR is a current control device. So therefore, unless the current is zero, so here whether the conduction will be there or not will actually depend on the flow of the current in the circuit, or rather the inductor which is maintaining the flow of current during this negative cycle. But definitely negative cycle के कारण current तो drop होने लगेगा, है ना? इस जगह पर current maximum होगा. आप देखेंगे भी इधर current maximum current will be at this particular point. Okay, this is the point where current will be maximum. After this the current will यहाँ पे अपन ने straight line box type दिखाया है current, but actually the waveform will be different. तो करंट जो है वो बढ़ता जाएगा यहाँ पे, ठीक है. इसके आगे जो है करंट घटता जाएगा द मोमेंट, क्योंकि अब क्या हो रहा है, इंडक्टर की पोलैरिटी चेंज हो गई. इंडक्टर इज गिविंग पावर आउट टू द, आई मीन इंडक्टर इज रिलीजिंग द स्टोर्ड एनर्जी, और इस पॉइंट के बाद पावर का डायरेक्शन उल्टा हो गया. एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई क्या हुआ, ये करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है, but voltage here becomes negative. ठीक है, voltage here becomes negative. तो due to voltage negative, current तो हमेशा ऐसे ही फ्लो होगा. कोई सा भी डिवाइस आए, करंट हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा आर्मेचर में. उल्टा करंट हो ही नहीं सकता इस कन्वर्टर में. ओके, दैट इज व्हाई आप देखेंगे कि करंट तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. 4 क्वाड्रेंट कन्वर्टर, ड्यूअल कन्वर्टर अगर चाहिए तो मोटर के दूसरी तरफ भी ऐसा ही एक कन्वर्टर उल्टा लगाना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे तो फील्ड और आर्मेचर दोनों में यू हैव गॉट अ फुल ब्रिज कन्वर्टर. ठीक है, तो the voltage is negative, so that means power has started flowing in the power direction is negative now. So the motor is not taking from the source, but motor is returning to the source. मोटर मतलब ये इंडक्टर और मोटर के अंदर का इंडक्टर, मोटर के अंदर जो इंडक्टर है ना वो भी वही काम करेगा.
So both the inductors together will circulate the current. ठीक है? Now after this, if you are asked to draw the voltage across the SCR anytime, okay, जैसे यहाँ पे अपन ने किया है, voltage across the SCR if you are asked to draw, then it will be ये वाला. ये always कब होगा? जब ये off है तो voltage पूरा जो AC voltage है वो across appear होगा, and when it is on, at that time the voltage across it will be 0. So this slide is about inversion. ठीक है? You know already that if alpha is greater than 90, then the motor terminals are reversed and there is a inversion activity which takes place. ठीक है? And during regenerative mode, ये वाला logic जो है ये चलेगा आपके लिए. This will be the logic which will be used during the regenerative braking mode. ठीक है? Because ये minus से compare होगा. Minus VB is greater than minus EB. तो ये current जो है ये braking current कहलाएगा. Here also, though we are showing the current continuous, but actually it is not continuous. ये steady state value है. Otherwise ये current ये इस तरीके से flow होगा. ठीक है? अगर ये condition है तो करंट जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, अदरवाइज करंट जो है वो डिक्रीज होता दिखेगा. So you can see this is the diagram where IA has been shown as a rippled current. This is regenerative braking. और ये जो कंडीशन है यहाँ पे माइनस V is greater than minus EB, तो you can see here कि ये EB है, E तो माइनस हो जाएगा ना रीजनरेशन में. The moment ओमेगा T is equal to pi, तो आपका जो मोटर है उसके टर्मिनल्स आपको रिवर्स करने पड़ेंगे, बिकॉज यू आर फीडिंग पावर फ्रॉम मोटर टू द लोड नाउ. तो मतलब क्या होगा? मोटर की काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो एक तरह से ब्रेकिंग होगा इस वाले क्वाड्रेंट में. दिस इज अ ब्रेकिंग. ठीक है? एंड देयरफॉर ब्रेकिंग के लिए आपको मोटर के भी टर्मिनल चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी आपका मोटर जो है वो मैच करेगा. तो देयर विल बी अ मैकेनिकल स्विच. So you change the motor terminals and then the current flows from, in this way the current will flow in the positive direction. The voltage, average voltage becomes negative during inversion, क्योंकि आप देखेंगे ना अब ये पॉजिटिव में थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और नेगेटिव ज्यादा है. ठीक है? इफ यू कंपेयर, अब बताइए सेमी कन्वर्टर और फुल कन्वर्टर. ठीक है? वेवफॉर्म्स को याद, इन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में दोनों कन्वर्टर्स के वेवफॉर्म्स अपने दिमाग में रखिए, सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो इन फ्यूचर, या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी. अब ये बताइए कि सेमी कन्वर्टर और फुल कन्वर्टर को अगर आपको कंपेयर करना है तो व्हाट इज द डिफरेंस? पहला तो ये हो गया कि दोनों एससीआर, मतलब चारों एससीआर होते हैं फुल में, एंड दो एससीआर दो डायोड होते हैं. ओके, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. व्हाट अबाउट अदर थिंग्स? लुकिंग एट द वेवफॉर्म, और क्या चीजें हैं इसमें? अगर अपन लोग आउटपुट वोल्टेज के रिपल या वेवफॉर्म की बात करें, या सोर्स करंट की बात करें, तो विच डीसी इज बेटर? दिस टाइप ऑफ, ये तो खैर जनरेटिंग, ये जनरेशन है और ये मोटरिंग ऑप्शन. तो ये वेवफॉर्म आपको ऐसा मिल रहा है और उसमें कैसा मिलता है? सिर्फ इधर तक ही मिलता है. तो ये वेवफॉर्म बेटर है कि वो वेवफॉर्म बेटर है? बताइए, सेमी वाला बेटर है कि फुल वाला बेटर है? बताओ बताओ. जिसमें नेगेटिव, इसको बोलते हैं अपन नेगेटिव एक्सकर्शंस, है ना, जो आते हैं. बेसिकली अगर करंट यहाँ 0 हो जाती तो ये नहीं आता. मतलब डीसी मोटर की जगह अगर एक रेजिस्टिव लोड लगा होता तो यहाँ पे करंट 0 हो जाती. तो ये जो कंडक्शन है, जो मोटरिंग ऑपरेशन में कोई एडवांटेजेस नहीं है ना. मोटरिंग के लिए ये एडवांटेजेस नहीं है, पर रीजनरेशन के लिए इसको अपन यूज कर सकते हैं. तो वेवफॉर्म ऑफ अ सेमी कन्वर्टर is always more near to DC than waveform of, मतलब सेमी कन्वर्टर के दो एडवांटेजेस हैं. एक तो ये है कि उसकी कॉस्ट कम होती है, बिकॉज दो डायोड अपन यूज कर सकते हैं. दूसरा एडवांटेज ये है कि उसका पावर फैक्टर और रिपल वगैरह जो है वो बेटर होता है सेमी कन्वर्टर में
एज कंपेयर टू अ फुल कन्वर्टर, मतलब इसका रिएक्टिव पावर स्टेटस जो है वो इसका बेटर। बट अब दूसरी चीजें देखो तो कॉस्ट वाइज फुल कन्वर्टर में 4 SCR होते हैं, बट it is a two quadrant converter, so you can use it for regenerative braking और in operations जब जहां थोड़ी देर मोटरिंग थोड़ी देर ब्रेकिंग, थोड़ी देर मोटरिंग थोड़ी देर ब्रेकिंग करनी है, तो वहां lot of power can be saved by regenerative braking of the machines. Okay, so in this way ये जो वेवफॉर्म आप देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने ऊपर वाले में सिर्फ कंटिन्यूअस कंडक्शन लिया है इन्वर्जन में, और ये करंट को एक स्ट्रेट लाइन की तरह लिया है। लेकिन जो नीचे वाला प्रिंसिपल है ये अगर हम लगाना चाहेंगे कि -v ग्रेटर देन -eb, तो ये वाले वेवफॉर्म आपके आएंगे। दिस इज योर -v, तो ये v जो है ये माइनस वाला है ना, ये +v है और ये वाला -v है। तो नीचे जब रीजनरेशन की बात कर रहे हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग की, तो -v इज ग्रेटर देन -eb, मतलब ये वाला जो पीरियड रहेगा इस जगह पे, तो आपकी करंट जो है वो वहां से वहां तक इस जगह पे आपकी ब्रेकिंग, दिस इज योर ब्रेकिंग करंट, करंट तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो योर ब्रेकिंग करंट विल इंक्रीज बिकॉज हियर योर -v जो है, मतलब ये जो वैल्यू है वो e से बड़ी है ना, उल्टा है ना, तो इसको बड़ा ही बोलेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक -v is greater than -eb and therefore the current is increasing. उसके बाद जो उल्टा यहाँ से लेके यहाँ तक current will be decreasing, and this is discontinuous conduction mode in regenerative braking. Discontinuous में क्या हो रहा है कि अगली डिवाइसेस कहाँ ऑन हो रही है, अल्फा पे, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट साइकिल। तो ट्रिगरिंग अल्फा पे हो रही है, तब तक आपकी करंट चल ही नहीं पा रही है बिकॉज द करंट इज बिकमिंग जीरो। रिमेंबर, व्हेनेवर द आर्मेचर करंट बिकम्स जीरो, द मोटर के सेकेंडरी साइड, मतलब मोटर साइड में there is neither any supply voltage nor any current, therefore only the motor back EMF will appear, क्योंकि मोटर अभी घूम रही है, तो that time only motor back EMF will appear और बाकी पूरा साइकिल यही रहेगा। So these slides have been shared with you, so you will be able to look at these slides. ठीक है, मैंने आपको एक और वो दिया है, असाइनमेंट दिया है, आप लोग देख लेना उसको, वो थोड़ा सा सोचने वाला है, बिकॉज आई डोंट वांट, बाकी तो आप लोग पढ़ ही लोगे, कर लोगे, ये सब चीजें रिवीजन जैसी ही हैं। आई जस्ट वांट यू टू हैव वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट्स। तो आपको एक टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक मैटलैब में बनाने के लिए बोला है, टाइम 8 अगस्त तक का है, और वही मैं दीक्षा में आपसे कह रही थी कि जो असाइनमेंट 1 है तो आप उसको समझ नहीं पाए हैं। दीक्षा, आर यू देयर, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. So Yes, you have ma'am. not understood specification का, अगर मैं पूछूंगी कि फैन की जो मोटर होती है, सीलिंग फैन आपके यहाँ जो लगा है, तो उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, बताओ क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? अपन ये थोड़ी बोलेंगे कि फैन किस लिए यूज होता है, उसकी कॉस्ट कितनी होती है। कॉस्ट एक स्पेसिफिकेशन हो सकता है, नॉन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, बट ये थोड़ी बोलेंगे स्पेसिफिकेशन में व्हाट एग्जैक्टली विल यू लाइक टू टेल, क्या बताओगे आप स्पेसिफिकेशन की जब भी कभी बात होगी, whenever we talk of specification, तो what will you say? Ma'am, motors. किसी भी, हाँ मोटर, फैन की मोटर ही है मान लीजिए, तो फैन की मोटर का स्पेसिफिकेशन क्या होगा बताओ? स्पेसिफिकेशन पूछा था ना, ऐसा थोड़ी था। ठीक है, आपने भी एफर्ट किया, आपने कुछ ना कुछ कोशिश की लिखने की, बट वो इतना सही नहीं हो रहा था, आपका जो आंसर था ना वो सही नहीं था। Yes, तो आप ma'am. लोग देख लेना। हाँ, जैसे फैन मोटर की आप कुछ भी, आप मैं कहूँ कि आपके एसी के मोटर की या आपके लैपटॉप में भी जो मशीन है, लैपटॉप के क्या स्पेसिफिकेशन है, पावर स्पेसिफिकेशन। वैसे तो अदरवाइज तो रैम होगा, जीबी होगा, है ना, वो सारी चीजें होंगी, स्पीड होगी, वो सब होंगे, स्क्रीन का साइज होगा, है ना, तो वो सब होगा। बट अदरवाइज पावर के क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, संजय बताएगा। ये सब स्पेसिफिकेशन लड़कों के ज्यादा अच्छे होते हैं, है ना संजय, बताइए। Yes, ma'am. व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ योर फैन? हाँ, फैन पावर रेट मैम, पावर रेटिंग हो गया, और हाँ मैम उसके स्पीड हो गया, आरपीएम, हाँ, बिल्कुल करंट रेटिंग बिल्कुल मैम उसकी हो गई मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को बेल्ट वगैरह के यही सब निकालने को बोला था, कन्वेयर बेल्ट और ये सब, कि जो एयरपोर्ट पे होते हैं तो उनकी रेटिंग्स क्या होती हैं, है ना। तो देख लेना, मैंने आपके लिए कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन भी पोज किया है संजय।
और नेक्स्ट असाइनमेंट भी आप लोगों को दोनों को करना है। बिल्कुल छोटा सा 8-10 लाइन का उसका प्रोग्राम बनेगा मैटलैब में। मतलब इसका रीजन ये है कि आपकी सोचने की क्षमता थोड़ी सी, अभी आपको पिछले स्क्रीन पे मैंने टॉक स्लिप रिलेशनशिप तो अपन ने देख ही लिया है कि क्या होता है। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम दी है, बस एक ही, कुछ आपको ज्यादा उसमें करना नहीं है। एक मोटर का पूरा डेटा है एंड आपको उसके लिए टॉर्क स्पीड निकालनी है। न्यूमेरिकल्स तो अपन बहुत करेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट इसमें आपको कैसे करोगे आप अगली बार वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। अभी अच्छा ये बताओ, क्योंकि मैंने क्विज का भी कहा था ना, तो यस मैम। स्पेसिफिकेशन का मतलब पावर वगैरह होता है, ठीक है। आप लोग क्विज जरूर दे लेना, क्योंकि आगे भी क्या रहेगा पता नहीं है। तो आप लोग के मिड सेम में भी क्या है, यही क्वेश्चंस आएंगे पूरे क्विज के, उसी में से आपको रैंडम क्वेश्चंस देंगे। तो क्विज अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना सब लोग। और दीक्षा, मैं आपके लिए चाहो तो क्विज 2 कल खोल दूंगी, ठीक है, आप देना चाहोगी क्या? ओके मैम। हाँ, तो मैं यस कल ही मैम। आपका उसी के आगे पीछे खोल दूंगी दोपहर को। और दोपहर का 2 बजे का टाइम ठीक है आप लोगों के लिए? नहीं तो फिर मैं चेंज करूँ, अभी मैंने 2 से 2:30 रखा है और 15 मैम क्वेश्चन। ठीक है मैम। 2 से 2:30 ठीक है ना? तो यस मैम। अब मुझे बताओ आप कि SCR किस टाइप का स्विच है? मतलब मैम कंट्रोल्ड, कंट्रोल स्विच। अनकंट्रोल्ड, है ना? ये सब कंट्रोल्ड स्विच है यस SCR। मैम। SCR इज अ कंट्रोल स्विच। ट्राइक क्या है? मैम ट्रैक भी करंट कंट्रोल्ड है मैम। नहीं, कंट्रोल्ड मैम स्विच का यहाँ पे मतलब क्या है? व्हाट डू वी वांट टू से हियर? By saying that it is a controlled switch, what are we trying to say? मैम मैम ट्रायड उसका में 2 हाँ SCR इनमें पैरेलल्स में लगे रहते हैं मैम। हाँ हाँ। मैम रेगुलेटर में यूज होते हैं ट्रायड। मैम ट्राइक ट्रैक भी में कंट्रोल जैसे स्विच फैन है का ना मैम। रेगुलेटर होता है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि जो अपन जब कह रहे हैं कि कंट्रोल्ड स्विच, तो उसका मतलब क्या हुआ? हम क्या कहना चाह रहे हैं बाय सेइंग कि इट इज अ कंट्रोल्ड स्विच? मतलब जो स्विच जो है फुल कंट्रोल स्विच, मतलब जिसको अपन मतलब ये नहीं कि फॉरवर्ड बायस हुआ तो ट्रिगर हो गया, रिवर्स बायस हुआ तो ऑफ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो उनको जो है वो हम कहेंगे कि दीज आर कंट्रोल्ड स्विचेस। ओके। यस मैम। अनकंट्रोल्ड स्विच कौन सा है बताओ, कोई एक नाम बताओ। मैम डायोड मैम। डायोड। हाँ, वेरी गुड, डायोड इज ए अनकंट्रोल्ड स्विच। बाकी तो जो हैं वो सारे के सारे, मतलब ये ज्यादातर सभी जो है डायोड के अलावा दे आर ऑल कंट्रोल्ड स्विचेस। बट कई बार हम यस। SCR को, समटाइम्स SCR को हम लोग जो है वो सेमी कंट्रोल स्विच बोलते हैं, क्योंकि उसको क्या ऑन करते हैं ना तो फिर ऑफ नहीं कर सकते। मतलब ऑन हमारे यस हाथ में मैम। है बट ऑफ नहीं। ऑफ कैसे होता है? 2 तरह से होता है, या तो उसके अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज आ कॉम्पिटिशन। जाए, हाँ 2 तरीके से, या उसकी करंट जो है वो 0 हो जाए, है ना? ठीक है ना? तो इस तरीके से ये होते हैं। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि ठीक है, नाउ कोई पावर डिवाइस जो बाय डायरेक्शनल है, बताओ। पावर डिवाइस विच इज बाय डायरेक्शनल, वो कौन सी होगी? विच इज अ बाय डायरेक्शनल, पता है आप लोगों को? मैम जो दोनों दिशाओं में चल, जैसे रेक्टिफायर। SCR तो एक ही दिशा में चलता है ना, इसीलिए तो करंट जो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल थी, चाहे TH1 यस और मैम। TH2 कनेक्ट मतलब कंडक्ट करें, या TH2 और TH4 करें। SCR में से हमेशा P से N की तरफ करंट जाती है ना? क्या कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें दोनों दिशा में जाती है करंट? उसी को बाय डायरेक्शनल बोलेंगे। कौन है बताओ? मॉसफेट। नहीं, बाय डायरेक्शनल स्विच मतलब एज ए स्विच, तभी तो वो AC को, अभी तो आपने आंसर दिया था संजय। AC अगर मॉसफेट पूरे फुल AC में कोई कंट्रोल करेगा तो वो पॉजिटिव साइकिल में भी चलेगा, नेगेटिव में भी चलेगा, है ना? तो बाय डायरेक्शनल स्विच कौन सा है? ट्राइक। ट्राइक इज अ बाय डायरेक्शनल स्विच।
ठीक है, ट्रायक इज अ बायडायरेक्शनल स्विच, क्योंकि ट्रायक तभी तो आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी वो कंट्रोल करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल को भी कंट्रोल करता है SCR की तरह, और इसीलिए आप फैन में उसको यूज कर पाते हैं। जबकि कन्वर्टर में तो आउटपुट DC होता है, नेगेटिव साइकिल पलट के ऐसी ऊपर आ जाती है ना, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ कि SCR करंट कंट्रोल्ड है, वोल्टेज कंट्रोल्ड है, कि करंट वोल्टेज दोनों कंट्रोल्ड है, या कुछ और चार्ज कंट्रोल्ड है, क्या है ये? SCR इज अ व्हाट टाइप ऑफ स्विच? मैम करंट कंट्रोल में। करंट कंट्रोल्ड, अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया, इसीलिए तो वो ऑफ नहीं होता है ना, ओमेगा T इज इक्वल टू पाई पे SCR इसीलिए ऑफ नहीं होता है क्योंकि इट इज अ करंट कंट्रोल स्विच, और उसमें से जब तक करंट जीरो नहीं होगी तब तक वो चलता ही रहेगा, कंडक्ट करता रहेगा। एक बार उसकी डिप्लीशन लेयर हटने के बाद वो कंडक्ट करता ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद सिंगल फेज जैसे AC टू DC जो सेमी कन्वर्टर होता है ना, उसमें करंट का वेवफॉर्म कैसा होता है? सोर्स करंट, उसका क्या शेप होता है? साइन वेव होता है कि सॉ टूथ टाइप होता है, कि स्क्वायर वेव होता है, कि ट्रेपेजॉइडल होता है? सिंगल फेज AC टू DC सेमी कन्वर्टर अपन ने अभी पढ़ा है ना, तो इसमें भी क्वेश्चन अभी सिर्फ सेमी तक ही है, फुल कन्वर्टर के नहीं है। उसमें सोर्स करंट का क्या वेव शेप होता है? मैम स्क्वायर मैम। स्क्वायर वेव, तभी अपन ने उसको फिर फंडामेंटल और उसमें ब्रेक कर दिया है ना, तो ये यस स्क्वायर वेव होता है। बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ कि SCR इज अ सेमी कंट्रोल्ड स्विच, ये बात सही है कि गलत है? मैंने अभी बताई थी आपको, मैम। ट्रू SCR इज अ मैम। सेमी कंट्रोल्ड, इट इज ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू। ट्रू, बिकॉज उसको सेमी कंट्रोल्ड इसलिए मैंने बताया ना आपको, एक बार शुरू होने के बाद आप पे इसका कोई कंट्रोल नहीं है। जबकि GTO, MOSFET, IGBT, इनमें सब में आपके पास दे आर फुल्ली कंट्रोल्ड स्विचेस, क्योंकि उसमें जब आप ऑन कर मतलब जब आप पल्स देंगे तब वो ऑन होगा, पल्स या सिग्नल देंगे, बेस पे करंट देंगे, जैसे ट्रांजिस्टर में अगर आप बेस करंट देंगे तो वो ऑन होगा, जैसे ही बेस करंट हटा लोगे वो ऑफ हो जाएगा इमीडिएटली, तो वो फुल कंट्रोल। ठीक है, सेम चीज मॉसफेट वगैरह में भी है, पर मॉसफेट करंट कंट्रोल्ड है कि वोल्टेज कंट्रोल्ड है? SCR तो आपने सही बताया करंट कंट्रोल है, मॉसफेट कैसा है? करंट कंट्रोल्ड है कि करंट कंट्रोल? मैम वोल्टेज कंट्रोल। मॉसफेट इज वोल्टेज कंट्रोल। मॉसफेट जो है ना, अपन लोग ज्यादा उसको पढ़ते नहीं है, पर मॉसफेट इज वोल्टेज कंट्रोल। अच्छा, अब ये सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर जो है विच इज सप्लाइंग द आर्मेचर ऑफ ए सेपरेटली एक्साइटेड DC ड्राइव, है ना, आर्मेचर करंट मैक्सिमम कब होगी सेमी कन्वर्टर में? अभी ही बताया था मैंने। मैं बैक EMF इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। हाँ, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स, जब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ सोर्स के बराबर है तो उस समय, है ना, क्योंकि जो मैंने आपको वेवफॉर्म दिखाई, और जब अपन रीजनरेशन की बात करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा दोनों में, मतलब -V इज ग्रेटर देन -E, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव साइड में है ना, तो वो, और मोटर भी आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड में। फ्री व्हीलिंग एक्शन जो होती है सेमी कन्वर्टर फेड DC ड्राइव में, फ्री व्हीलिंग वो कब होती है, किस पॉइंट पे फ्री व्हीलिंग एक्शन होता है? मैम ओमेगा T इज इक्वल टू पाई। ओमेगा T इज इक्वल टू पाई से फ्री व्हीलिंग एक्शन स्टार्ट हो जाता मैम यस मैम। है ना। और अगर मैं उल्टा बोलूं कि इंडक्टर जो है वो कब तक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और कब इंडक्टर एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करता है? इंडक्टर की तो पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है, जैसा अपन शुरू में प्लस और माइनस दिखता है ना, क्योंकि वो चार्ज हो रहा है, फिर वो इंडक्टर की पोलैरिटी भी उल्टी हो जाती है। तो इंडक्टर की अगर यही क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल सही बताया कि ओमेगा T इज इक्वल टू पाई। लेकिन अगर अपन बात करें कि इंडक्टर, तो फिर क्या होगा? इंडक्टर कब तक, किस समय तक एनर्जी स्टोर करता है और कब वो एनर्जी डिलीट वो डिप्लीट करता है, रिलीज मैम अल्फा
मैम अल्फा टू पाई तो वो एनर्जी स्टोर करता है और डिलीवर पाई टू पाई प्लस अल्फा। नो 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 नो, वो जब मैम तक बीटा मैम करंट बीटा वोल्टेज इज राइज हो रही है ग्रेटर ना, देन ईबी। हाँ नहीं, हाँ जब वोल्टेज इज इक्वल टू ईबी हो जाता है तब आपकी करंट मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद आपकी करंट डिक्रीज होने लगती है, आर्मेचर करंट। तो उसके पॉइंट मतलब जब आपका ईबी बिकम्स ग्रेटर देन वोल्टेज, यही बोला था संजय, जब V इज यस ग्रेटर मैम। देन ईबी है तब तो वो स्टोर करेगा, और जब E इज ग्रेटर देन V है तब वो उल्टा हो जाएगा, इंडक्टर से ही पावर आपको, इंडक्टर थोड़ी सी लोड को ही सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और पाइप पे जाके तो फिर और ही कुछ हो जाएगा, ठीक है। नाउ हाँ अगला क्वेश्चन भी यही है, देखो मैं जो आपको बता ही रही थी कि फॉर ए सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर फेड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी ड्राइव द फ्रीव्हीलिंग एक्शन ऑफ द डायोड स्टार्ट्स एट, नहीं, फॉर ए सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर फेड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी ड्राइव the inductor starts releasing stored energy to the mechanical load at, मतलब ईबी लोड ग्रेटर को, देन वी। हाँ ईबी ग्रेटर देन, बिल्कुल सही, राइट, एकदम राइट। ये एक्चुअली ये वाले कॉन्सेप्ट आगे भी काम आएंगे आपके फॉरवर्ड बायसिंग के, उसके जो इन्वर्टर भी, क्योंकि काफी कुछ इसी तरह का रहेगा, है ना। फिर इन अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर फेड फ्रॉम सेमी कन्वर्टर, सब में अभी सेमी कन्वर्टर ही है, द आर्मेचर करंट कैन बिकम डिसकंटिन्यूअस ड्यू टू, कौन कौन से रीजंस है बताओ जिसके कारण की आर्मेचर करंट डिसकंटिन्यूअस हो सकती है, क्योंकि वो ऐसा मैम उसमें हाई भी लोड। कंटिन्यूअस हो सकती है, अगर इंडक्टर ने इतनी एनर्जी स्टोर कर ली कि अगले डिवाइस जब ऑन होगा, अगला डिवाइस कब ऑन होगा ये तो पक्का फिक्स्ड है कि पाई पे ही होगा, पहले पाई पे फिर पाई प्लस पाई पे, है ना, पाई सॉरी अल्फा, पाई प्लस अल्फा पे ही होगा अगला डिवाइस ऑन, तो है ना। हाँ बताओ बताओ दीक्षा, आर्मेचर करंट कैन बिकम डिसकंटिन्यूअस ड्यू टू व्हाट रीजंस, कौन कौन से रीजंस है गिनो, आपको लिखवाए हुए, मतलब उसमें स्क्रीन पे है भी आपके लार्ज पास। फायरिंग एंगल हो सकता है ना मैम, हाँ हाँ फायरिंग बिल्कुल, एंगल लार्ज होगा तो। हाँ यस बिल्कुल, मैम। और एनर्जी तो देखो इंडक्टर रिलीज कर रहा है, जब तक इंडक्टर एनर्जी रिलीज करता रहेगा तो करंट फ्लो होती रहेगी, इसका मतलब लो इंडक्टर से भी कुछ पता चला ना, इंडक्टर की वैल्यू भी अगर लो है तो भी करंट डिसकंटिन्यूअस हो सकती है यस ना, मैम। और यस मैम। करंट अगर खुद लो है, करंट अगर खुद लो है ना, तो तब भी हो सकती यस है, मतलब मैम। करंट अगर कम है तो वो जल्दी, माने फॉर द सेम इंडक्टर उसका डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग में सेम होगा, बट अगर आई ज्यादा है तो डिक्रीज होने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, और अगर आई कम है मतलब लाइट लोड्स है तो लाइट लोड पे भी डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस काफी रहते हैं, जब लोड लाइट है उस टाइम भी हो सकता है कि हो जाए, है ना। तो सिमिलरली हम कहाँ पहुंच गए, हाँ डिसकंटिन्यूअस तो हो गया था, फिर हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्या हो रहा है, मूडल एक्चुअली डायरेक्टली मूडल पे है तो इस वजह से, हाँ बताओ, to maintain the operation of a DC drive fed from semi-converter in continuous conduction mode over wide range of speed and load, मतलब हम चाहते हैं कि separately excited drive सेमी कन्वर्टर से फीड है, कंटिन्यूसली लो स्पीड से लेके हाई स्पीड तक पूरे टाइम वो कंटिन्यूस कंडक्शन में मोड में रहे, तो हम क्या कर सकते मैम हैं। इंडक्शन शुड बी हाई। वेरी गुड दीक्षा, आज आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, हाँ कल की क्लास अटेंड करने से वही मैडम ने बार बार पढ़ाया है ना। अच्छा इसमें यस ये है कि मैम। आप लोग ध्यान से, अब तो आप लोग कन्वर्सेंट हो गए हैं मूडल से, तो जिन क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर्स होते हैं ना, एक दो तीन तक भी हो सकते हैं, तो उसमें आपको हिंट मिल जाती है ना, ऊपर लिखा रहता है सिलेक्ट वन और मेनी मोर करके, है ना, तो उनमें यस आंसर के एक एक क्वेश्चन के आपको मार्क्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे, किसी के 2 आंसर होंगे तो प्रत्येक एक आंसर का 1 मिलेगा, तो ये 15 नंबर की आपकी क्विज है, ठीक है। और अभी फिर हम बस क्लास को यहाँ पे बंद करते हैं, ठीक है, क्लास आज इसके बाद क्लोज करते हैं। अच्छा संजय आउट ही हो गया शायद, ऐसा लग रहा है, मैं तो मूडल खोल के बैठी थी ना तो मैं देख नहीं पाई, नेट वेट नहीं कैसा मैम, है, है संजय संजय अभी। है, अच्छा अच्छा, तो यस मुझे मैम। दिख भी नहीं रहा संजय, हाँ ठीक।
मैं आप लोगों को तो दिख रही थी और स्क्रीन भी दिख रहा था ना? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो कुछ आप लोगों को पूछना है क्या तो बताओ, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक में अपना मंडे को तो क्लास होगा नहीं, फिर फ्राइडे को देखेंगे। मैं बताऊंगी, मैं नेक्स्ट वीक में स्लाइटली बिजी भी हूँ, तो मैं आपको टाइम बता दूंगी। वैसे फ्राइडे का क्लास में ले लूंगी। और ये क्विज तो आपकी यही थी, जैसे मैंने बताया कि कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड एंड सेमी कंट्रोल्ड स्विचेस पे थी, है ना? और सिमिलरली ये सेमी कन्वर्टर फेड डीसी ड्राइव, इसी का पूरा था सब, आपने देख ही लिया। तो आप लोग के अच्छे नंबर आ जाने चाहिए। तो ऑल द बेस्ट टू यू। किसी को कुछ और डाउट है क्या, कोई चीज पूछनी है क्या? स्लाइड्स को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैंने बहुत कम स्लाइड्स बनाई हैं, यही आपके नोट्स, इससे ज्यादा कुछ बहुत यस। ज्यादा जरूरी नहीं है ना? और जो असाइनमेंट दिया है वो जरूर दोनों लोगों को करना है, ठीक है? टॉक स्लिप कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करनी है, काम ज्यादा नहीं है, बस सोचना पड़ेगा। न्यूमेरिकल को मैटलैब पे सॉल्व करना है। आपके पास मैटलैब लोडेड है ना दोनों लोगों के पास? मैम मेरे पास नहीं है अभी मैम, मेरा लैप ही खराब हो गया था ओहो, इसलिए। अच्छा 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 अच्छा। तो ठीक है, फिर आप जो है वो उसको ऐसा करना कि किसी एक वैल्यू पर आप हाथ से ही निकाल के दे देना, उसको न्यूमेरिकल की जी तरह ट्रीट मैम। कर लेना, और टॉक की कोई वैल्यू ले लेना। हाँ, ठीक है, चलो मैं क्लास बंद कर रही हूँ अभी यहाँ पे। हाँ, ओके मैम, थैंक यू तो मैम। आप किसी एक करना, ठीक है? ओके, बाय बाय बाय, हैव अ गुड डे।